সিনেমার গল্প, বিনোদন জগতের গসিপ সম্পর্কে সমস্ত খবর জানতে চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল সিনে পাড়াতে। বিনোদন যেখানে শেষ কথা। जीडी बिरला सभागार और संस्कृत सागर दोनों हमारे डॉक्टर के बिरला ग्रुप द्वारा बनाया गया है। ये एक सांस्कृतिक मंच है। इसमें हम बंगाल के कलाकारों को डेवलप करने के लिए संस्कृत सागर संस्था के थ्रू अपना ये प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं। ये एक चैरिटेबल संस्था है और इसमें हम लोग वैसे इस बार जो हमारे पास जो आई हुई है शुभा मुदगल जी, ये बहुत रेनाउंड भजन गायिका है। इसके पहले हम लोगों ने और भी अच्छे कलाकारों को बुलाया था। हम लोगों का हमारा ये प्रयास रहता है, हमेशा प्रयास ये रहता है कि बंगाल के कल्चर को डेवलप किया जाए और बंगाली कलाकारों को डेवलप करें। इसी वजह से हम लोग यहाँ के लोगों की जनता वगैरह की जनता को भी हम लोगों की इच्छा रहती है कि यहाँ की जनता को सांस्कृतिक कार्यक्रम का लाभ मिले और वो लोग इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि ये जो है नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। संस्कृत सागर बेसिकली 80-85 के आसपास संस्था बनाई गई थी। ये इसी पर्पज से बनाया गया था कि अपने जो है बंगाल के कल्चर को डेवलप किया। आज का शुभा मुदगल जी का ये क्लासिकल म्यूजिकल भजन संध्या है। ये जो बहुत ही रेनाउंड और इंटरनेशनल फेम की पर्सनालिटी हैं, तो हम लोगों का इंटेंशन यही था कि इनको बुला करके यहाँ की जनता को थोड़ा इसका लाभ देंगे। সংস্কৃতি সাগর আমাদের একটা পুরনো কালচারাল সংস্থা আছে। আমরা চেষ্টা করছি যে যত ভালো ভালো প্রোগ্রাম হয় দেশ বিদেশ থেকে যে আর্টিস্ট আছে ওদেরকে নিয়ে এই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসে কলকাতার মধ্যে যারা আর্ট লাভার আছে বা মিউজিক লাভার আছে তাদের জন্য একটা এরকম একটা অনুষ্ঠান হয়। আর আমরা গত মাস একটা আর.ডি. বর্মনে প্রোগ্রাম করেছিলাম। এটা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শুভা মুদগলকে আনা হয়েছে। এরপরে আমরা মোহাম্মদ রফি একটা ট্রিবিউট করব। তারপরে কিছু ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্টকে আমরা আসতে চেয়েছি এখানে। তার জন্য আমরা টাই আপ করছি অনেক সংস্থা থেকে। এখন যে আছে আমাদের প্রোগ্রামে সংস্কৃত সাগর যার উদ্দেশ্য আছে যে যত বেস্ট পারফরমেন্স হয়, হয়তো বেস্ট আর্টিস্টকে নিয়ে কলকাতায় বা বাইরে থেকে ওদেরকে নিয়ে এসে এখানে একটা ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া আর ওদের সঙ্গে একটা ভালো অনুষ্ঠান করা। সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ আছে আমাদের বিড়লা গ্রুপে, অনেকগুলো আছে, অনেক জিনিস আছে যেটা সামাজিক স্তরে আমরা যে কাজ করছি। ইভেন স্কুল হয় বা ডিসপেন্সারি, ইভেন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বা মেডিকেল টু অল দ্য ডাউনট্রডেন পিপল, আমাদের উৎসব চিন্তা করে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ওর মধ্যে সংস্কৃত সাগর একটা আলাদা জিনিস আছে, একটা আলাদা সংস্থাই আছে। তার উপলক্ষ হচ্ছে যে কোনো বিচারে আমরা এখানে যত কালচারাল প্রোগ্রাম আছে যে প্রমোট করা যায়। আমরা গত বছর দুর্গা পুজোর সময় আমরা এনেছিলাম তেজেন্দ্র নারায়ণকে, বিক্রম ঘোষ আর শিবামণিকে। খুব একটা ভালো মিউজিক্যাল অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেটা আমরা এখান থেকে বাইরে করেছিলাম। এই বছরে আমরা চেষ্টা করছি আরও কোনো বড় অনুষ্ঠান করে এই প্ল্যাটফর্মে জিডি বিড়লা সভাগারে আর আরও বড় বড় আর্টিস্ট ন্যাশনাল লেভেলে যে আছে ওদেরকে নিয়ে। তো আমরা ভাবছি যে আরও আলোচনা করছি, আরও যারা কনসালটেন্ট আছে, যারা শো অর্গানাইজ করে ওদের সঙ্গে টাই আপ করে আমরা একটা অনুষ্ঠান আরও করতে চেয়েছি ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ ওয়ান অফ দ্য মেজর সেন্টার ফর কালচারাল ইন কলকাতা,
তার সঙ্গে আমরা কিং লিয়ার মতন একটা নাটক প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছি। সো দ্যাট উইল বি আ প্রোডাকশন ফ্রম আওয়ার এন্ড। সো এটাই আছে এই অবধি। आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि युवाओं को पसंद नहीं आता पारंपरिक संगीत, लेकिन इस शहर में ऐसा नहीं है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा तो उसमें तो ऐसे लोग आएँगे ही जिनको भक्ति साहित्य और भक्ति संगीत से प्रेम हो। लेकिन मेरे लिए खुशी की ये बात है कि ज़्यादातर मैं जब यहाँ आती हूँ तो शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के लिए आती हूँ, या फिर अगर फ्यूजन पॉप का हो तो उसके लिए आती हूँ। लेकिन भक्ति संगीत का एक पूरा कार्यक्रम करना, ये शायद मुझे लगता है कि कोलकाता में तो पहली बार कर रही हूँ। देखिए, ये तो एक ऐसी मतलब एक ऐसा उत्सव होता है इस शहर में, जिसको देखने के लिए लोग देश-विदेश से आते हैं, और गाना बजाना, साज सज्जा, खाना-पीना, इतना सब ऐसा माहौल होता है कि जिसमें सबका मन लग जाता है। ऐसा ही माहौल बना रहे और आप लोग इस तरह का माहौल बनाए रखें, उसमें हम सब आते रहें, आनंद लेते रहें, यही बधाई भी होगी और अभिनंदन भी होगा कि सब लोग अगर ये कर पाएँ, हम ऐसा समाज बनाएँ जो प्रेम, शांति और एक उत्साह के साथ साथ रह सके, तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं एक ऐसे परिवार में पली-बढ़ी जहाँ हर धर्म का के जो उत्सव हैं, उन सबको हम मनाते थे। अ, वैसे वैष्णव साहित्य से मेरा विशेष एक लगाव है। मैं बहुत वर्षों से उसका अध्ययन भी कर रही हूँ ब्रज भाषा में। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये जो सारे पद हैं, ऐसे आपको बंगला में भी मिलेंगे, मराठी में भी मिलेंगे, गुजराती में भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे परिवार में जन्म मेरा हुआ जहाँ पे रीति-रिवाज़ इतना ज़्यादा, उसे मतलब पूजा-पाठ की जो विधि है, शायद उतना हमने नहीं सीखा, लेकिन प्रेम करना सीखा, और संगीत से भी प्रेम करना सीखा और साहित्य कला से भी प्रेम करना सीखा। तो मुझे तो लगता है कि जन्माष्टमी के जो असंख्य पद हैं, चाहे वो जन्म की बधाई हो या पालना हो, या फिर जब वो ठाकुर जी चलने लगते हैं घुटने, घुटुरुन चलते हैं, तब उसका वर्णन, चाहे उनकी जो फिर वो अलग-अलग लीलाएँ हैं, उसका वर्णन हो, तो मैं बहुत वर्षों से इस पे काम करती आ रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ, और इसे जिस तरह मुझे तालीम मिली है राग संगीत की, उसमें मैं प्रस्तुत कर सकूँ, ऐसा प्रयास है।